Welcome again friends to your own channel with His Judicial Academy, and what we are doing, we are trying to understand the offense of mischief. इससे पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं और ये क्लास आपकी सेकंड क्लास हो गई है, तो हम कह रहे हैं इसको पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, पार्ट 2 अब हम लोग कवर करेंगे। ये क्लास आपको मिलेगी एज ए IPC 425, बट यू शुड कन्वर्ट दिस इट इनटू BNS 324। सेक्शन के अलावा कोई चेंज नहीं है, और अगर आपने इस वीडियो पे डायरेक्टली आ गए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको मेरा सजेशन ये है कि पहले आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लें, पार्ट 1 देख लें, तब जा कर के आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। और इन दोनों की ही पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी एक एक लाइन को अच्छी तरीके से समझेंगे, तभी आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑफेंस ऑफ मिसचीफ इन द पार्ट 2। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है डैमेज। See, the word used in the Barak language is what? Intent to cause or knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage. The word is what? Damage. What is the intention? Intention is to cause wrongful loss or damage. है कि नहीं है? तो ये डैमेज का मतलब क्या है यहाँ पर? ये डैमेज का जो मतलब उसको wrongful loss बताना, डैमेज को समझाने के लिए एक आध केस लॉ पढ़ लेते हैं, so that you should have a good understanding of this point also. See this damage. It is not necessary that there must be damage of destructive nature to constitute an offense under this section. Damage of destructive nature. It requires merely that there should be an invasion of right and diminution of the value of one's property. इसको समझिए आप सेकंड स्लाइड में। When you are intending to cause damage, intention should be to cause damage. So what do you mean by the damage here? It is damage of destructive nature. It is not must. हिंदी में कहें तो विध्वंसकारी प्रकृति हो ये आवश्यक नहीं है। डैमेज, नुकसान जो है, डैमेज करना, wrongful loss और डैमेज टू, किसी व्यक्ति को नुकसान करने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा कोई विध्वंस ही होगा उसमें। वो इट मे बी वॉट? एन इन्वेजन ऑफ राइट, किसी के अधिकार का हनन भी हो सकता है। इट मे बी एन इन्वेजन ऑफ राइट, किसी के व्यक्ति का अधिकारों का हनन, और डिमिन्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति की संपत्ति का मूल्य कम होना, उसके अधिकारों में हनन भी डैमेज की कैटेगरी में आएगा। इट इज रिक्वायर्ड, what is required कि there must be at least invasion of right. What is not required in every case कि there must be a destructive nature damage. To understand this, please come to this. This case law is Kastyarama case है, the case of Kastyarama. Please understand this case. Where some persons belonging to one village, एक गांव के कुछ लोग हैं, pulled and removed fishing stakes lawfully fixed in the sea. Stakes lawfully fixed मतलब खूंटे, fishing stakes मतलब मछलियों को पकड़ने के लिए खूंटे गाड़ दिए गए हैं उसमें, उनको वो they pulled and removed it. तो persons of one village pulled and removed fishing stakes lawfully installed in the sea, and these fishing stakes were fixed by the villagers of another village. अन्य एक गांव के लोगों ने खूंटे गाड़े थे, दूसरे गांव के लोगों ने खूंटे वो उखाड़ दिए वहां से। समझ में बात आ गई को हिंदी में, साफ शुद्ध हिंदी में। दो विदाउट एनी इंटेंशन टू एप्रोप्रिएट देम, जो व्यक्ति उनको रिमूव कर रहे हैं उनकी इंटेंशन ये नहीं है कि दे वांट टू एप्रोप्रिएट देम, अपने ऊपर अपने लिए खर्च करना चाहते हैं, यूज करना चाह रहे हैं। ओके, नाउ बाय डूइंग दिस दे ओकेजन्ड डैमेज्ड, इट वाज हेल्ड दैट ऑफेंसेस अमाउंटेड टू मिसचीफ। So it was the case of causing damage to the persons who installed those stakes in the sea. So it is very simple case and very interesting case। ये समझ लीजिए कौन सा मिलेगा आपको? सुखा सिंह, प्लीज, very important case. Don't do that. You should read this, मतलब don't do like accused, never in life. See, this is what the accused on receiving delivery of a registered article. What the accused
Did accused received a registered article from the postmaster, and then he was requested to sign an acknowledgement for the article received by him, but instead of returning the same duly signed, he tore it up and threw it on the ground. It was held that he was guilty of mischief. क्या समझिए क्या थी बात ये? Accused received an article through registered post. When you are receiving something, you are supposed to give the acknowledgement in writing signed that I have received the property. So you were given an acknowledgement, then you were supposed to write it, sign it, but instead of signing it, you tore it and threw it. So what offense you have committed? The offense is of what? Mischief. केस का नाम क्या है? सुखा सिंह. प्लीज रेज हैंड अगर ये बात समझ में आ रही हो तो. बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं बार बार. अब नाउ he caused what? He destroyed the property. Are you getting this point? By tearing it, he destroyed the property. Next, what do you mean by the change in the property? See, again come to the language of this Barak language, and this is what? Cause is the destruction of any property. We have seen the example of destruction: burning valuable security, tearing up the acknowledgement, and now causes any such change in any property or in situation thereof. तो ये जो मीनिंग है, ये फ्रेज जो है, ये दिस फ्रेज चेंज इन द प्रॉपर्टी सो एज टू डिस्ट्रॉय और डिमिनिश इट्स वैल्यू और यूटिलिटी, इसका मतलब क्या है? इसके मीनिंग को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा. चेंज इन द प्रॉपर्टी सो एज टू डिस्ट्रॉय और डिमिनिश इट्स वैल्यू और यूटिलिटी. For that purpose, please go to the case of व्योमकेश भट्टाचार्य वर्सेस एलन दत्ता. केस का नाम लिख लीजिए, व्योमकेश भट्टाचार्य. व्योमकेश भट्टाचार्य वर्सेस एलन दत्ता केस है. वेरी इंटरेस्टिंग केस. The accused stopped supply of water to the complainant's flat. क्या क्या accused ने? Accused stopped supply of water to the complainant's flat. कंप्लेनेंट के फ्लैट में जो वाटर सप्लाई जा रही है उसको उसने बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया. कैसे किया? थ्रू ऑपरेशन ऑफ रेंच वॉल्व की एंड देयर बाई टर्निंग द मेन पाइप आउटसाइड द स्टोरेज रिजर्वायर. जो स्टोरेज रिजर्वायर है उसमें जो मेन पाइप से पानी जा रहा है उसको रेंच के द्वारा उसको चेंज कर दिया, टर्निंग द मेन पाइप, सो दैट पानी उसमें जाएगा ही नहीं. जब पानी जाएगा नहीं तो आपके घर में आएगा कैसे? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक्यूज ने क्या किया? ही जस्ट स्टॉप दी वाटर सप्लाई. जो आप लोग काम करते रहते हो छुटके फुटके, देखो कितने बड़े भयंकर ऑफेंस बन सकते हैं ये. किसी के घर में पानी की सप्लाई को रोक दिया. कैसे रोका? जो आपकी टंकी है उसमें पाइप से पानी जा रहा है, मेन पाइप है, उसको आपने टर्न कर दिया यानी कि घुमा दिया बाय ऑपरेशन ऑफ रेंच वॉल्व की के चाबी के द्वारा. समझ में आ गई बात आपको? प्लीज रेज हैंड. यहां तक आ गए तो अब इसमें समझने वाली बात क्या है? दिस इज इट वॉज हेल्ड बाय द हाई कोर्ट दैट एक्सप्रेशन चेंज इन द प्रॉपर्टी सो एज टू डिस्ट्रॉय और डिमिनिश इट्स वैल्यू यूटिलिटी, और इसमें अंतर समझ, डज नॉट नेसेसरली मीन ए चेंज इन करेक्टर, कंपोजिशन और फॉर्म. देखी स्लाइड आपने? इसको समझिए कि चेंज इन प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप उसके प्रॉपर्टी करेक्टर को ही चेंज कर देंगे, उसको आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे, उसके कंपोजिशन को चेंज कर देंगे, उसकी फॉर्म को चेंज कर देंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आप पहले उसको प्रॉपर्टी को, उसका जो स्वरूप है उसी को चेंज कर दीजिए. नो, इसका मतलब ये है इफ समथिंग इज डन टू द प्रॉपर्टी कॉन्ट्ररी टू इट्स नेचुरल यूज एंड सर्विसेबलनेस. प्लीज दिस फ्रेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलवेज राइट इन मेंस में आप इस फ्रेज को लिखेंगे ही लिखेंगे. क्या? इफ समथिंग इज डन टू द प्रॉपर्टी कॉन्ट्ररी टू इट्स नेचुरल यूज एंड सर्विसेबलनेस. उस प्रॉपर्टी का जो नेचुरल यूज है, जिस तरीके से उसकी उपयोगिता है, सर्विसेबलनेस है, अगर आप उससे कॉन्ट्रेरी यूज करोगे, आप उसको यू कैन से इट इज द चेंज इन द प्रॉपर्टी और सिचुएशन देयरऑफ. इसको समझिए. देखो मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं?
इन दोनों को समझिए कि चेंज इन प्रॉपर्टी सो एज टू डिस्ट्रॉय और डिमिनिश वैल्यू और यूटिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उस प्रॉपर्टी के चरित्र में परिवर्तन कर देंगे, करेक्टर ही चेंज कर दें उसको, या उसका जो कंपोजिशन जिससे मिलके बनी है वो उसी को पूरा चेंज कर दें, या उसी की क्या उसकी फॉर्म है उसको चेंज कर दें। इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब आम शब्दों में समझिए कि आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है उसमें आपकी, है ना। कंपोजिशन समझते हैं, जैसे रबड़ी बनती है, किससे बनती है? दूध से, मलाई से, है ना, और चीनी से। अब इस कंपोजिशन चेंज मतलब उसके अंदर सॉल्ट डाल दिया, कंपोजिशन चेंज हो गया, समझ रहे हैं आप। किसी का कोई खट्टी चीज़ को मीठी, मीठी चीज़ खट्टी, मतलब वट एवर यू कैन से कि आमूल चूल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। सिर्फ ये देखा जाएगा टेक्निकली कि क्या आपने उसका जो यूज़ है, जो नेचुरल यूज़ है ना, जो नेचुरल यूज़ है या सर्विसेबलनेस, मतलब जिस तरीके से उसकी उपयोग यूटिलिटी है, अगर आपने उसके कॉन्ट्रेरी काम करवाया उससे, समथिंग इज डन टू द प्रॉपर्टी कॉन्ट्रेरी टू इट्स नेचुरल यूज, देन और उसकी वजह से उसकी जो यूटिलिटी है कम होती हो, देन इट विल अमाउंट टू मिसचीफ। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या, इट इज नॉट नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी ए मटेरियल चेंज इन द प्रॉपर्टी इटसेल्फ, कि प्रॉपर्टी में अपने आप में बहुत मटेरियल चेंज हो, बहुत बड़ा चेंज हो। नोर डज सेक्शन 420 रिक्वायर दैट वैल्यू और यूटिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स इट्स मार्केट वैल्यू और यूटिलिटी। यहां पर मार्केट वैल्यू से ही मतलब नहीं है। जैसे यहां पर इस केस में स्टॉपेज ऑफ वाटर सप्लाई इन दिस मैनर वॉज समथिंग कॉन्ट्ररी टू द नेचुरल यूज एंड सर्विसनेस ऑफ द वाटर पाइप। जो यहां पानी का पाइप है उसका जो नेचुरल यूज था, नेचुरल यूज क्या था, वहां पर पाइप क्यों लगाया गया था, वो उस पाइप से पानी जाना था स्टोरेज में। सर्विसनेस क्या थी, यूटिलिटी ऑफ द वाटर पाइप वाज व्हाट, टू ब्रिंग द वाटर इनटू द टैंक। दिस वाज द नेचुरल यूज ऑफ पाइप एट दैट प्लेस। यूटिलिटी ऑफ द पाइप वाज व्हाट, टू ब्रिंग वाटर टू द टैंक, है कि नहीं है, एंड यू एक्टेड कॉन्ट्ररी टू दैट। तो therefore this brings into the change in the property or situation thereof. This act will come to the contrary to its natural use. तो जो पानी का पाइप था उसका नेचुरल यूज क्या था, उसका नेचुरल यूज था कि वो पानी को टंकी तक पहुंचाए। आपने पाइप को तोड़ा नहीं, पाइप को काटा नहीं, है ना, आपने उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, आपने क्या किया कि सिर्फ उसको मोड़ दिया। अब उसका क्या हो गया कि जो उसकी उपयोगिता थी, सर्विसेबलनेस थी, वो कॉन्ट्रेरी कर रहे हैं आप। उसकी सर्विसनेस है, उसकी उपयोगिता है पानी पहुंचाना, आपने उसको उल्टा काम कर दिया, यू एक्टेड कॉन्ट्रेरी टू दैट। तो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दैट इट डिमिनिश्ड इट्स वैल्यू और यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ पाइप गोज देन नाउ, बिकॉज उसका इफेक्ट क्या हुआ, यूटिलिटी खत्म हो गई इस पाइप की, देन इट विल बी द केस ऑफ मिसचीफ। सो कोर्ट का कहना यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि व्योमकेश भट्टाचार्य, वेरी इंपॉर्टेंट केस है भाई, ध्यान रखना, कि हमेशा आप उसके करेक्टर चेंज करेंगे, करेक्टर कंपोजिशन चेंज करें या कोई मटेरियल चेंज करें। For the purpose of mischief, material change in the property is not necessary. What will be seen, whether the accused acted contrary to the use of the property and thereby diminished its value or utility. Are you getting this point? Please raise hand अगर बात समझ में आ गया तो। I have repeated so many times. समझ में आई बात आपको? तो देखो ये छुपी हुई बातें हैं। छुपी हुई बातें क्या है कि यू शुड नॉट ओवरलुक दिस फ्रेज, चेंज इन द प्रॉपर्टी सो एज टू डिस्ट्रॉय और डिमिनिश इट्स वैल्यू और यूटिलिटी। समझे कि नहीं? तो ये दीज आर इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, इन्हीं पर केस लॉज आए हुए हैं। इट मीन्स व्हाट, दीज फ्रेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट ओवरलुक दीज फ्रेजेस। समटाइम्स हम केवल मेन चीजों पर ध्यान रखते हैं, and these, if you concentrate on these minute things, you can become very good advocate as well.
You can argue very well on case laws, on the point of charge. No, this is not the case of mischief. There is no such change, there is no restriction, whatever you can say it. है कि नहीं है? Here change means, line लिख लीजिए please, change means some physical change. This line is asked in your prelims exam. This section contemplates a physical injury from a physical cause. Physical injury from a physical cause. Sometimes ये phrase पूछ लेते हैं. For the purpose of 425 what is required? Physical injury from a physical cause. Now what do you mean by the property here? Because there is what? You please see again this. Whoever causes destruction or change in situation of any property. So what do you mean by the property here? Property का मतलब क्या है यहाँ पर? Then the property means what? Meaning of property here means some tangible property which can be forcibly destroyed. समझे? Which can be forcibly, which can you touch it, which can be destroyed. It may be anything then. It may be paper, it may be valued security, it may be horse, it may be house, it may be ship, it may be anything, but it must be tangible property. It means not intangible property. जैसे copyright हो गया, copyright is an intangible property. तो here it is what? Tangible, which can be touched. ऐसे मान सकते हैं आप ये. तो property means some tangible property which can be forcibly destroyed and but does not include easement, and it can be the question of prelims for you whether the easement is an property here or not. For the purpose of section 425, easement is not the property. Easement is the right upon the other's property, है कि नहीं है? But that is not tangible. For the purpose of 425, easement is not property. ठीक है? तो some cases देख लेते हैं, कुछ अच्छे cases. देखिए, very important case. ए लाइट से मैच स्टिक माचिस की तिल्ली जलाता है, सही है, एंड अप्लाइज इट टू द ले स्टॉक ऑफ बी विद ए व्यू टू सेटिंग फायर टू बी के स्टॉक पर उसको आग लगाने के लिए उस पर तिल्ली लगा देता है, सही है. ए लाइट से मैच स्टिक एंड अप्लाइज टू इट लाइक दिस. समझ में आ गई बात? हाउ एवर ए ट्राइज टू एक्सटिंग्विश द फायर ऑफ हिज ओन अकॉर्ड. अपनी इच्छा से फिर वो उस आग को बुझाने की कोशिश भी करता है. चेंज समझ रहे हैं इसमें? एग्जामिनर कैसे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि एक व्यक्ति ने आग लगा दी लेकिन फिर वो ए ट्राइज टू एक्सटिंग्विश द फायर एज वेल. कहेंगे भला अच्छा आदमी है, तो लग गई, गलती से लगा दी बेचारे ने, अब बुझा तो रहा है ना. एंड इन फैक्ट सक्सीड्स इन डूइंग सो बिफोर ही इज कॉट बाय बी. और आग को बुझाने में भी कामयाब हो जाता है. आग खुद लगाई, बुझा दी, सही है. तो बताइए क्या वो लायबल होगा या नहीं होगा? रेज हैंड जो कहेंगे मिस्चीफ करी नहीं करी. यस, हियर ए विल बी लायबल अंडर दिस सेक्शन इफ ही हैड बाय सेटिंग द फायर कॉज सम डैमेज टू बी. अगर डैमेज कर दिया, चाहे कितना भी डैमेज किया हो, देन इट विल द केस ऑफ मिस्चीफ. तो समटाइम्स दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. खुद आग लगाना, खुद ही बुझाना, तो मिस्चीफ हुआ या नहीं हुआ, कर लेंगे. इसी तरीके से द एक्यूज वर ड्राइविंग लॉरी विद होपलेसली इनएडुकेट लाइट्स. देखो आपकी जिंदगी जुड़ी हुई चीजें हैं, ये ध्यान रखना. एक्यूज वर ड्राइविंग लॉरी विद होपलेसली इनएडुकेट लाइट्स which resulted in an accident in which some animals belonging to the complainant were killed. It was held that he was guilty of mischief as he knew that his act was likely to cause damage. You can confuse this with the 279, 337, 338 etc. कि भाई एक्सीडेंट में नेग्लिजेंस है, तो इट इज द एक्सीडेंटल नेग्लिजेंस, बट दिस इज अगेन ग्रॉस नेग्लिजेंस. Hopelessly inadequate light. Are you getting this point? Please see this. I have given you red color. Hopelessly inadequate lights means very 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 less light. बहुत कम light है. Hopelessly inadequate lights है. When you are driving such a vehicle, it means you know
नॉलेज कैन बी प्रिज्यूम्ड ऑन योर पार्ट नाउ, कि बाय योर एक्ट यू मे कॉज एक्सीडेंट, हाँ है ना. इट इज नॉट द केस ऑफ नेग्लिजेंस नाउ ओनली. If you are driving such a vehicle which is hopelessly inadequate light, it means knowledge can be presumed on your part now, because this is the case of gross negligence, है कि नहीं है. And if that driving results into an accident, in that case, and that is resulting into damage to the property, then this is the case of mischief. कर लेंगे. Reapaya, this is the case of reapaya. कर लेंगे आप, सही है. सो आई हैव गिवन यू सो मैनी इलस्ट्रेशन, सो मैनी केस लॉज. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर मी टू डिस्कस ईच एंड एवरी. यू शुड रीड दोज केस लॉज. ऐसे ही देख लीजिए. सी दिस, वेयर द एक्यूज इन ऑर्डर टू इजेक्ट ए ट्रेसपासर एंड विद दिस ऑब्जेक्ट इन व्यू ही सेट फायर टू हिज ओन हाउस. क्या क्या एक्यूज ने? Where the accused in order to eject a trespasser, trespasser को बाहर निकालने के लिए, and with this object in view he set fire to his own house, अपने ही घर में आग लगाई है. क्यों निकाली है, लगाई है? कि trespasser को बाहर खदेड़ सके. तो here this is the, there is no intention or knowledge to cause wrongful loss or damage to another person. Therefore this is not the case of mischief. So this is the end of this chapter. I have given you notes as well. I have discussed so many case laws which have been collected from textbooks. As it is textbook collection दिया आपको, एक बार उनको ढंग से प्लीज़ गो थ्रू ऑल दैट. कहीं किसी को समझ में नहीं आए पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं. आपको करना क्या है, प्लीज़ व्हाट यू शुड डू. आई हैव एक्सप्लेन यू द बेयर एक्ट. आई एम टेलिंग यू, अगर आप लोगों ने बेयर एक्ट को भी अच्छी तरीके से रिप्रोड्यूस कर दिया एग्जाम में, वेदर इट इज प्रीलिम्स और मेंस, यू विल क्वालिफाई द एग्जाम. लेकिन सेफर साइड में जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, केस लॉज दे रखे हैं, इवन इफ यू फॉरगेट द नेम ऑफ द केस लॉज, इट कैन वर्क. व्हाट इज मोस्ट असेंशियल दैट द बेयर एक्ट, यानी कि सेक्शन अलोंग विद एक्सप्लेनेशंस अलोंग विद इलस्ट्रेशंस, इट शुड बी इन योर माइंड. ये ज़बरदस्त तरीके से होना चाहिए बस. उसके बाद में जो एक दो केस लॉ डिस्कस किए उनको याद कर लो तो अच्छी बात है, अदरवाइज काम चल जाएगा आपका. इतना मैंने नोट्स दे दिए आपको, 6 पेज के नोट्स हैं, है ना. इनको पढ़ लीजिए एक दो बार अच्छी तरीके से. और जो रटने वाला काम है, दो रटने का मतलब है थर्ड स्टेज, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड देन कम्स द स्टेज ऑफ लर्निंग. तो वो जो स्टेज है, इस कम से कम बेयर एक्ट लैंग्वेज जरूर रट लीजिएगा. इसमें जो जो फ्रेज है इक्वली उससे कर लीजिएगा. देखिए इसमें एक बात और नोट कर लीजिए. 425 डिफाइन द मिसचीफ एंड देयर आफ्टर स्टार्ट्स 426 to 440. दीज आर द पनिशमेंट क्लॉजेज अंडर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस. 426 से लेकर के 440 तक, दीज आर पनिशमेंट क्लॉजेज. तो एट माई ओन पर्सनल लेवल मैंने तो कभी याद नहीं किया इसको. 426 से लेकर 440 तक इसमें पनिशमेंट दिया गया है. कैसे कैसे? मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़, है कि नहीं. इस तरीके से मिसचीफ बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग पनिशमेंट दिया हुआ है 426 से 440. जिन लोगों के पास समय है और जो ऐसे हैं कि कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते, और थर्ड जो समर्थ हैं अपने आप में, मतलब इतना झेल सकते हैं, तो वो इनकी हेडिंग से काम चला सकते हैं. हेडिंग को याद कर लें कि कौन से सेक्शन में क्या पनिशमेंट है. बस पनिशमेंट की क्वांटम याद रखने की जरूरत नहीं है कि 2 साल है 3 साल है, उससे मतलब नहीं है. लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने जितने भी एग्जाम क्वालिफाई करें 425 से मेरा काम चल गया है. सही है. एट द मोस्ट आप क्या कर सकते हो, 435 मिसचीफ बाय फायर, 436 मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस. ये आप कर सकते हैं. 435 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 436 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 427 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 50 रुपीज़ हाईलाइट कर लीजिए इसमें बस, बाकी रेस्ट इज योर विश. तो दिस इज ऑल अबाउट 425 to 440, 425 से लेकर 440 तक का समाप्त हो गया.
So friends, you have completed this part as well. So part 1 and part 2 cumulative must have given you the holistic understanding of the offense of mischief. आपको बहुत अच्छी तरीके से ऑफेंस ऑफ मिसचीफ समझ में आ गया होगा। हिंदी में बोलते हैं इसको रिश्ती का अपराध। जितना कराया गया है उतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए। आने वाले टाइम में जैसे जैसे वक्त टाइम मिलेगा हम इन क्लासेस को अपडेटेड करते रहेंगे। तो आप क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें आपको। थैंक यू वेरी मच।